بات کرتے ہیں سیاسی گہما گہمی کی اور شامل کرتے ہیں ہم خبر پی ٹی آئی کے مزید 43 ارکان قومی اسمبلی کے استعفے منظور، تعداد 113 ہو گئی۔ جنوبی پنجاب کے مختلف حلقوں سے بھی اراکین اسمبلی شامل، رحیم یار خان این اے 157 کے جاوید اقبال وڑائچ کا استعفیٰ منظور، این اے 177 سے مختوم خسرو بختیار کا استعفیٰ منظور، بہاولپور این اے 170 کے فاروق اعظم علی کا استعفیٰ منظور، راجن پور این اے 149 کے نصر اللہ خان درشے کا بھی استعفیٰ منظور۔ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے استعفے الیکشن کمیشن کو بھجوا دیے۔ اس سے قبل قومی اسمبلی کے 2 استعفے منظور ہو چکے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں امجد بخاری۔ جی امجد بخاری، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، یہ چوتھے مرحلے میں پی ٹی آئی کے مزید 43 ارکان ہیں قومی اسمبلی کے استعفے منظور کر لیے گئے ہیں، اور اس طرح اب جن لوگوں کے استعفے منظور ہو گئے پی ٹی آئی کے ان ارکان کی تعداد 113 ہو گئی ہے۔ یہ 2 مرحلوں میں 35 ارکان کے استعفے منظور کیے گئے، اور اب یہ مزید جو ہے 43 ارکان کے استعفے منظور کیے گئے ہیں، اور اس سے قبل جو ہے استعفے منظور کیے گئے تھے۔ اب ایسا لگتا ہے کہ قومی اسمبلی پی ٹی آئی کے ارکان سے خالی ہو گئی ہے۔ یہ جو دوسرے اور تیسرے مرحلے پر ارکان اسمبلی کے استعفے منظور کیے گئے ہیں، اس میں بڑی تعداد میں جنوبی پنجاب سے بھی ارکان اسمبلی شامل ہیں۔ یہ اس آخری مرحلے میں، چوتھے مرحلے میں جن لوگوں کے استعفے منظور کیے گئے ہیں ان میں این اے 177 سے مختوم خسرو بختیار شامل ہیں، بہاولپور سے فاروق اعظم ملک کا استعفیٰ منظور کیا گیا ہے، راجن پور سے نصر اللہ خان دریشہ کا بھی استعفیٰ منظور کیا گیا ہے۔ اس سے پچھلے مرحلے میں سید فخر امام کا استعفیٰ منظور کیا گیا تھا، شاہ محمود قریشی اور ملک عامر ڈوگر کے استعفے منظور کیے گئے۔ تو یہ بڑی جو تعداد ہے وہ لیڈرشپ کی ہے جو جن کے استعفے منظور کر لیے گئے ہیں، اور اب ایسا لگتا ہے کہ قومی اسمبلی میں پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جو ہے وہ باقی نہیں رہی، اور وہ سب کے استعفے منظور ہو چکے ہیں۔ اس کو دیکھا جائے تو یہ بڑا دھچکا ہے پی ٹی آئی کے لیے، کیونکہ پی ٹی آئی اس مرحلے پر چاہتی تھی کہ ان کے استعفے منظور نہ کیے جائیں۔ انہوں نے آج کوشش بھی کی، اور ارکان اسمبلی جن کے استعفے منظور ہونے کے لیے گئے ہوئے تھے وہ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ بھی گئے، وہاں جا کے مطالبہ بھی کرتے رہے کہ ان کے استعفے منظور نہ کیے جائیں۔ ابھی بھی انہوں نے مطالبہ کیا ہے اسپیکر سے اور الیکشن کمیشن سے کہ ان کے نوٹیفیکیشن جاری نہ کیے جائیں اور ڈی نوٹیفائی کیا جائے ان نوٹیفیکیشن کو جن کے جاری ہو چکے ہیں، کیونکہ وہ قومی اسمبلی میں واپس آنا چاہتے ہیں۔ پی ٹی آئی یہ کہہ رہی ہے کہ وہ قومی اسمبلی میں واپس اس لیے آنا چاہتے ہیں کہ وہ راجہ ریاض سے اپوزیشن لیڈر کی حیثیت واپس لینا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ صحیح اپوزیشن کی حیثیت نہیں رکھتے، اور یہ منصب جو ہے وہ پی ٹی آئی کے پاس ہونا چاہیے۔ لیکن یہ منصب جب پی ٹی آئی کے پاس تھا تو وہ خود ریزائن کر کے باہر نکل آئے، اور طویل عرصہ وہ مطالبہ کرتے رہے کہ ان کے استعفے فوری طور پر منظور کیے جائیں۔ جب اسپیکر نے مرحلہ وار ان کے استعفے منظور کرنے شروع کیے تو پہلے مرحلے میں چند لوگوں کے استعفے منظور کیے گئے تھے، تو پی ٹی آئی کا اس وقت یہ شدید مطالبہ تھا کہ امجد بخاری ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ہمیں ابھی جوائن کیا ہے بیورو چیف بہاولپور رضا ملک نے۔ جی رضا ملک، بتائیے گا کہ استعفے منظور کر لیے گئے ہیں، پی ٹی آئی کی سیاست کا کیا مستقبل نظر آ رہا ہے؟ جی دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جو پارلیمنٹرین ہیں ان کی طرف سے ایک واپسی کا اعلان کیا گیا تھا کہ وہ واپس ایوان میں جانا چاہتے ہیں، اور اس حوالے سے جب ان کا دیر چاہا انہوں نے استعفیٰ دے دیا اور ایوان چھوڑ دیا، اور اب جب سیاسی صورتحال بنتی دیکھی تو انہوں نے واپسی کی راہ لی کہ وہ واپسی پارلیمنٹ جانا چاہتے ہیں۔ لیکن اس حوالے سے جو ان کے استعفے تھے ان کو مرحلہ وار منظور کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا، جس میں 2 مرتبہ 35 اراکین کے جو ہیں استعفے منظور کیے گئے تھے، اور اب مزید 43 اراکین قومی اسمبلی کے جو ہیں وہ استعفے منظور ہو گئے۔ اس طریقے سے 113 اراکین اسمبلی کے جو ہیں وہ جو پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھتے تھے ان سے جو ہے ان کے استعفے منظور ہو چکے ہیں۔ غازی خان سے بات کریں تو زکات گل پاکستان تحریک انصاف کی رہنما ہے، ان کا بھی استعفیٰ منظور ہو چکا ہے۔ اسی طریقے سے راجن پور سے جو ہے وہ نصر اللہ خان دریشہ کا استعفیٰ منظور ہو چکا ہے۔ بہاولپور این اے 170 کے فاروق اعظم ملک کا استعفیٰ منظور ہو چکا ہے۔ این اے 177 سے مختوم خسرو بختیار کا استعفیٰ جو ہے وہ منظور کیا جا چکا ہے۔ اسی طریقے سے رحیم یار خان کے قومی صوبائی اسمبلی کے حلقے این اے 179 کے جاوید اقبال وڑائچ کا استعفیٰ بھی جو ہے وہ منظور کیا جا چکا ہے۔ تو عملی طور پر جو پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ ہے وہ ایوان سے مکمل طور پر باہر ہو چکی ہے، قانونی اور آئینی طور پر یہ استعفے جو ہیں وہ منظور ہو چکے ہیں، جس کے بعد جو ہے اب جو اراکین مستعفی ہو چکے ہیں ان کا ایوان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور وہ مزید آپ ان کو انتخاب میں ہی حصہ لینا پڑے گا دوبارہ ایوان تک پہنچنے کا۔ اس حوالے سے جو ہے وہ فیصلہ کیا جا چکا ہے، اور اراکین کی قومی اسمبلی کے استعفے منظور ہونے کے بعد اب مجموعی طور پر 113 اراکین
कौमी असम्बली जिनका ताल्लुक पाकिस्तान। जी बहुत शुक्रिया ब्यूरो चीफ बहावलपुर रजा मलिक आपका हमें आगाह करने के लिए और इन्हीं के साथ मौजूद थे एडिटर रोही अमजद बुखारी, आपका भी बहुत शुक्रिया हमें तफसीलन आगाह करने के लिए। अहम खबर शामिल करते हैं और आपको बताते हैं निगरान वजीर आला सैयद मोहसिन रजा नकवी का कफायत शुआरी के लिए अहम इकदाम। वजीर आला ने सरकारी फंड्स के बेजा इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी। वजीर आला ऑफिस में खानों और दावतों को रोक दिया गया। जराये के मुताबिक वजीर आला ऑफिस में दोपहर के खानों पर पाबंदी लगा दी गई है। वजीर आला ऑफिस आने वाले मेहमानों को चाय और बिस्किट पेश किए जाएंगे। वजीर आला ने अपने लिए खाने चाय घर से मंगवाने की नई रिवायत कायम कर दी है। वजीर आला ऑफिस में अफसरान को किफायत शुआरी इख्तियार करने की हिदायत है। निगरान वजीर आला जाती और अपने स्टाफ के अखराजात भी खुद बर्दाश्त करेंगे। वजीर आला ऑफिस के अखराजात खातिर ख्वाह कम किए जाएंगे। साबिक वजीर आला चौधरी परवेज इलाही के दौर में अखराजात करोड़ों में थे। नाज़रीन हम आपको आम खबर से आगाह कर रहे हैं। निगरान वजीर आला सैयद मोहसिन रजा नकवी का कफायत शुआरी के लिए अहम इकदाम। वजीर आला ने सरकारी फंड्स के बेजा इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी। वजीर आला ऑफिस में खानों और दावतों को रोक दिया गया। जराये के मुताबिक वजीर आला ऑफिस में दोपहर के खानों पर पाबंदी लगा दी गई। वजीर आला ऑफिस आने वाले मेहमानों को चाय और बिस्किट पेश किए जाएंगे। वजीर आला ने अपने लिए खाना चाय घर से मंगवाने की नई रवायत कायम कर दी। वजीर आला ऑफिस में अफसरान को कफायत शुआरी इख्तियार करने की हिदायत जारी कर दी गई है। निगरान वजीर आला जाती और अपने स्टाफ के अखराजात भी खुद बर्दाश्त करेंगे। वजीर आला ऑफिस के अखराजात खातिर ख्वाह कम किए जाएंगे। साबिक वजीर आला चौधरी परवेज इलाही के दौर में अखराजात करोड़ों में थे। महंगाई ने खानों का जायका भी बदमजा कर दिया। अशे खुरूनोश के साथ साथ मसाला जात की कीमतें भी बढ़ गईं। काली मिर्च लौंग समेत दीगर मसाला जात की कीमतों में दुगना इजाफा। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे राना बिलाल से। जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, बढ़ती महंगाई ने गरीब आदमी से खाने का नवाला तक छीन लिया है। मैं बात करूं अशिया खुरोनोश की कीमतों के हवाले से तो अशिया खुरोनोश की कीमतों में 2 दिन के अंदर दुगना इजाफा देखने में आया। बात करी जाए मसालों के हवाले से तो मसालों की कीमतें जो है काफ़ी ज़्यादा 2 दिन के अंदर बढ़ चुकी हैं। अगर मैं ज़ीरे की बात करूं, जो ज़ीरा 1200 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रहा था, अब 2 दिन में 400 रुपये इजाफे के बाद 1600 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किए जा रहे हैं। इसी तरह लौंग की बात करूं तो जो लौंग 1800 रुपये किलो आज से 2 दिन पहले मिल रहा था, वही आज 3600 रुपये फ़ी किलो तक मार्केट में जा पहुंचा है। अगर बात की जाए बड़ी इलायची की तो इस तरह अगर हम और मसाला जात की बात करें जिसमें काली मिर्च जो है, काली मिर्च की कीमत में भी जो है इस वक्त 350 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से इजाफा देखने में है। काली मिर्च जो 1050 रुपये की फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रही थी, वही अब 1400 रुपये फ़ी किलो तक जा पहुंची है। जानते हैं दुकानदार से क्या मसाइल का सामने आया। कीमतें बढ़ाते ही जा रहे हैं, क्या कीमतें आप खुद बढ़ा रहे हैं या पीछे से बढ़ती जा रही हैं? नहीं, पीछे मंडी से बढ़ रही है। रेट जो है ना इसके, वो कहते हैं एलसीए नहीं खुली, जैसी एलसीए खुल जाएंगी रेट इसके कम हो जाएंगे। अच्छा, तो अब मुझे ये बताएं कि जो कीमतें इतनी ज़्यादा बढ़ी हैं, दुगना इजाफा मसाला जात की कीमतों में देखने में, आपकी सेल पे क्या असर पड़ा है? क्या कहना चाहेंगे? दुकान के खर्चे भी हैं आप? ज़ाहिर बात है, जब चीज़ें महंगी होती है तो क़ुव्वत खरीद ख़त्म हो जाती है। लोगों के पास इतने वसाइल नहीं होते कि वो सामान खरीदें। तो आप ये देख लें कि आड़ती से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि डॉलर की शॉर्टेज की वजह से रेट बढ़ रहे हैं, जैसी एलसीए खुल जाएंगी रेट कम हो जाएंगे। इनकी जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि हुकूमत को चाहिए कि ना सिर्फ ये खाने पीने की अशिया कंट्रोल करें, बल्कि इनकी कीमतों में कमी की जाए ताकि हर आदमी जो है इसे ये अशिया। राना बिलाल बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। खबर शामिल करते और आपको बताते हैं कराची बंदरगाह पर एलसी बंद। एलसी बंद होने से मुल्क भर में इंपोर्ट रुक गई। माल होलसेलर्स तक ना पहुंचने के बायस मार्केट में कागज की कीमत दुगनी हो गई। कागज 150 से बढ़कर 300 रुपये फ़ी किलो में फरोख्त होने लगा। सफ़े की कीमत बढ़ने से दुकानदार और तलबा परेशानी का शिकार। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं वसीम शहजाद से। जी वसीम शहजाद बताइएगा। जी बिल्कुल, कराची बंदरगाह की बात करें तो एलसी बंद होने के बायस जो सफ़े का रेट है वो डबल हो गया, जिसके बायस जो स्टूडेंट हैं उनको भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। 2.5 रुपये की होने वाली कॉपी जो है वो अब 3 रुपये की हो रही है और इसके साथ साथ जो नोट्स हैं उनकी कॉपी कराना भी मुश्किल हो चुका है। इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर कुछ शहरी भी मौजूद होंगे। क्या कहेंगे, कितनी मुश्किलात का सामना जो है वो करना पड़ रहा है सफ़े की कीमत महंगी होने के बाद? सर जी, हम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, जैसे कि आपको
मालूम है कि हमें नोट्स वगैरह की ज़रूरत है और पेपर वगैरह की ज़रूरत होती है, तो इसलिए आजकल इनकी कीमतें आसमान को छू रही हैं, जिसकी वजह से इनको ख़रीदना हमारे लिए बहुत बड़ी मुश्किल बन गया है। और इसका कोई हुकूमत को चाहिए कोई हल तलाश करे। कोई हल जो है वो तलाश करे कि दुकानदार की तरफ भी जाते हैं, उनसे भी पूछते हैं कारोबार पर कितना फ़र्क पड़ चुका है, क्योंकि पुराने लोग जो हैं स्टूडेंट वो तो यही कहते होंगे कि हमें पुराने रेट्स के ऊपर कॉपी करके दें। ये वजह क्या हुई कि रेट जो है वो मुकम्मल डबल हो गया और एक पैकेट के ऊपर 300 रुपये बढ़ चुका है और 150 रुपये का सफ़ा जो है वो अब 300 रुपये किलो पे फ़रोख्त हो रहा है। कितना आप लोगों को मुश्किल है? इसमें सबसे पहले तो ये चीज़ है, ये हुकूमत की नाअहली है जो गरीब को पीसना चाह रही है। वो कहती है कि गरीब ना खाना ना खाए। अब जो पहले हम 2-3 रुपए का काम करते तो वो 10 रुपये कस्टमर से चार्ज करते तो वो लड़ने को आता है। इसमें ये हुकूमत की नाअहली है मुकम्मल तौर पे। वो कहती है कि हमारे पास कुछ है नहीं, गरीब कहता है हम कहाँ जाएँ। दिहाड़ी करके खाने वाला भी बहुत परेशानी है। जो स्टूडेंट तबका है उसको भी खासा मुश्किलात का सामना है और रेट्स जो कागज़ के हैं वो भी डबल हो गए हैं, जिसके बायस जो है स्टूडेंट्स को नोट्स के हवाले से और अपनी कॉपीज़ कराने के खासा मुश्किल। कागज का रेट डबल हो चुका है। बहुत शुक्रिया राना बिलाल आपका हमें अपडेट करने के लिए। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अवामी मसाइल की। मुल्तान में चौक शहबाज का वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट अरसा दराज से बंद। फिल्ट्रेशन प्लांट तो बना दिया गया मगर इसे फाल ना किया जा सका। मुल्तान के इलाका मकीन पीने के साफ पानी से महरूम। गंदा पानी पीने से शहरी बीमारियों का शिकार होने लगे। तफसीलात जानते हैं अलिश बासिफ से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त चौक शहबाज के इलाके में मौजूद हूँ, जहाँ पे अरसा दराज से एक फ़िल्ट्रेशन प्लांट बंद है। फ़िल्ट्रेशन प्लांट आवाम को साफ़ पानी मुहैया करने के लिए लगाया जाता है, मगर इधर फ़िल्ट्रेशन प्लांट बना तो दिया गया है मगर इसको फ़ाल नहीं किया गया। इलाका मकीन जो है इस वजह से काफ़ी परेशान है, साफ़ पानी उनको मैसर नहीं है। इस वक्त मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो परेशान हैं, इनसे बात कर लेते हैं। अमल दरामद कोई भी हुकूमत नहीं कर रही, चाहे कोई भी आ रहा है जा रहा है, लेकिन इस पे भी नहीं आ रहे क्योंकि पानी का मसाइल है। हालांकि ये मेन रोड है मुल्तान का, जहाँ से हर अफसर ने भी गुजरना है, हर मुलाजिम ने भी गुजरना है, लेकिन सबकी नज़रों में ये नज़र आ रहा है, लेकिन अमल दरामद नहीं। पानी भरने कहाँ जाते हैं फिर? पानी करने वो चौक शहबाज से आगे, और इसमें हमारा 1500 का तेल चल जाता है सिर्फ पानी भरने का। तो यहाँ का पानी की इतनी स्मेल है ना कि जितने हद नहीं। यहाँ भी किसी के घर से गिलास भरो उसमें स्मेल है, सारे गटर में बंद पड़े हैं इधर लेना, वो पानी सारा नीचे उतर रहा है, वो नीचे चढ़ा पानी बाहर है, वो उसने पीना जिसने वो बीमार। ये सारे आवाम इस इलाके के अपनी बीमारी में मुब्तला है। कि अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखा सके, ये वो फिल्ट्रेशन प्लांट है। फिल्ट्रेशन प्लांट तो बना दिया गया है, ना ही अंदर कोई निज़ाम है, टूटियां लगाई गई हैं, ना ही कोई टैंकियां लगाई गई हैं और ये बंद है और मिट्टी मिट्टी हो रहा है। ऐसे लगता है कि सिर्फ फिल्ट्रेशन प्लांट बनाकर छोड़ दिया गया है। यहाँ के जो इलाका मकीन है वो इस बात से काफ़ी परेशान भी हैं, कहते हैं कि चौक आगे वाले इलाके में जाते। जी अलिश बासिफ, बहुत शुक्रिया आपका। मुल्तान के बाद रुख करते हैं मियांवाली का। पिपला क्लोरकोट बाईपास का तामीराती काम आखिरी मरहले में पहुंच गया। 1 करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए गोल चक्कर की तामीर मुकम्मल हो गई। शहरियों का कहना है कि स्पीकर पंजाब असम्बली ने इनकलाबी काम कराए हैं। इसी बारे में मजीद बात करते हैं अख्तर मजाज से। जी बिल्कुल, स्पीकर पंजाब असम्बली सरदार मोहम्मद सफ्तान खान ने अपने हल्का की तरक्की के लिए बहुत सारी तरक्याती स्कीमों का आगाज करवाया, जिनमें से मेन जो इस वक्त तहसील पिपला के लिए तोहफा है वो है पिपला क्लूरकोट दोआबा बाईपास, जो तकमील के आखिरी मरहल में पहुंच चुका है। शहरी क्या कहते हैं इस हवाले से, इनसे इस हवाले से बात करते हैं। क्या कहेंगे, ये बाईपास बना है और तकरीबन 1 करोड़ रुपए के लगभग इस पे लागत है, क्या कहेंगे इस हवाले से? जी, सफ्तान खान ने जो इस दफ़ा काम किया है ये बहुत ही पिपला का जो है इनकलाबी काम है। यूँ समझ लें कि अब पिपला जो है अब तरक्की की तरफ काम जाना, और इसके अलावा यहाँ जो ट्रैफिक की रवानी वगैरह वो पहले भी मुतासिर होती थी और भी बहुत सारे मसाइल होते थे। पहले यहाँ पे लोग एहतजाज करते थे तो एम्बुलेंस को भी गुजरने का रास्ता नहीं मिलता था। ये वाला रोड देख रहे हैं, यहाँ पे किसी का पेट्रोल ख़त्म हो जाए उसके बेचारे के लिए बड़े मसाइल पैदा होते थे। तो इन्होंने अब रोड इस तरीके से बनाया हुआ है कि आवाम की बहुत सारी मुश्किलात का जो हल है ना
अब वो उसमें उसका जी, पिपला बाईपास जो है कलूर कोट, दोआबा, पिपला, हरनौली मुख्तलिफ इलाका जात को जाता है, क्या कहेंगे इस काम के हवाले से? इस काम के हवाले से ऐसे कह रहे हो, जिस तरह इमरान खान ने और सप्तान खान ने जो काम किया, ये पिपली की खुशहाली भी है और पिपली के जो है ना आवाम को भी ये खुश कर रहे हैं। और कैसा रोड बन गया, पिपली दे आलू वाले का रोड बन गया, पिपला दा और कलूर दा रोड, ये ऐसे रोड बन गए जब ऐसे रोड कई नहीं मैंने देखा हुआ है। जी बिल्कुल, कारपेट रोड बने हैं। 70 साल बाद पिपला की तरक्की जो है मुमकिन हो पाई और काफ़ी सारे रोडों की वजह से यहाँ के जो शहरी हैं उनको सफरी सहूलियात भी मुयस्सर हैं। एक्सीडेंट की जो रफ्तार थी उसमें कमी आ चुकी है। लोग इस हवाले से खुश हैं और अन करीब जो है बाकायदा तौर पर इसका इफ्तिताह किया जाए। लोग इस हवाले से खुश हैं। बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। सैयद मोहसिन रजा नकवी निगरान वजीर आला पंजाब बन गए। लीगी रहनुमा राना इकबाल सराज की रोही से खुसूसी गुफ्तगू, कहते हैं कि शुक्र है पंजाब से नाहल हुकूमत खत्म हुई है। सैयद मोहसिन रजा नकवी को वजीर आला पंजाब बनने पर मुबारकबाद पेश करते हैं। मजीद जानते हैं जुनेद अनवर से। जी जुनेद अनवर, बताइएगा। जी बिल्कुल, सैयद मोहसिन नकवी निगरान वज़ीर आला पंजाब बन चुके हैं और इसके बाद जो है मुस्लिम लीग नून की जानिब से मोहसिन नकवी के जो तकर्री है उसको सराहा जा रहा है। इस वक्त लीगी रहनुमा और टिकट होल्डर राना इकबाल सिराज हमारे साथ मौजूद से बात करेंगे। राना साहब, कैसे देखते हैं कि पंजाब हुकूमत के अंदर इस वक्त निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी हैं, क्या समझते हैं कि मोहसिन नकवी से पंजाब के अवाम को क्या तवक्कुआत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि इस पंजाब गवर्नमेंट चोर गवर्नमेंट थी और पूरा 5 साल लोगों की तबाह कर दी। 4-5 साल इन्होंने आटा तक नहीं मिलता और लोग बेचारे परेशान हैं। पूरा मुल्क इन्होंने बेड़ा गर्क करके रख दिया है। पंजाब, खास करके पंजाब को इन्होंने डिकेटियाँ, चोरियाँ और इतना, और ख़ुद भी ये जो इन्होंने कमाई की है इंशाल्लाह अवाम की गिरबान पकड़ेगी इस इलेक्शन में। मैं मोहसिन नकवी पढ़े लिखे आदमी है, मैं बहुत ज़्यादा खुशी की बात है और खुश आइंदा है कि ऐसे लोग पाकिस्तान की सियासत में हों और पंजाब के वज़ीर आला बनने पर मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। तो आप क्या समझते हैं कि मोहसिन नकवी साहब से क्या उम्मीदें वाबस्ता है? खासतौर पर ऐसे कौन से मसाले, जिस तरह मोहसिन नकवी साहब ने अपने पहले इजलास के अंदर जिसकी कल सरबराही की, उसके अंदर उन्होंने आटे के ऊपर जो है वो एक्शन लिया और उसकी किल्लत दूर करने का हुक्म दिया। मैं ये समझता हूँ जी, हम ये मसला है, गरीब लोग हैं हमारे, बहुत अवाम गरीब है और मुश्किल हालात में है, तो ये बहुत अच्छा उन्होंने इकदाम किया। दूसरी बात यह है कि मैं मोहसिन नकवी साहब से ये उनसे मैं दरख्वास्त करूंगा कि एग्रीकल्चर के ऊपर उसको प्रमोट करें और जिन लोगों को स्किल्स है, जिनको काम आता है, उनको लेके आए आगे। वो लोग इस मुल्क को एग्रीकल्चर को ठीक करने में बहुत ज़्यादा बड़ा रोल अदा कर सकते हैं इंशाल्लाह। और मोहसिन नकवी साहब को मैं दोबारा मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उनको अल्लाह ताला ने बड़ा ओहदा दिया है। वो इस पे अपनी सारी जितनी भी उनकी है वो उस तवानाई है वो खर्च करें और इनकी जो झूठी और चोरों की गवर्नमेंट थी उसको पता चल जाएगा कि सही बंदा क्या होता है और गलत क्या होता है। जी बिल्कुल, लीगी रहनुमा राना इकबाल सिराज का कहना है कि मोहसिन नकवी को वज़ीर आला पंजाब बनने पर मुबारकबाद भी पेश करते हैं। साथ साथ उनका ये भी कहना था कि मोहसिन नकवी से उन्हें उम्मीदें वाबस्ता है। खासतौर पर उनका ये भी कहना है कि ज़राअत के ऊपर खसूसी तवज्जो देने की ज़रूरत है। स्किल के हामिल जो बहुत शुक्रिया जुनेद अनवर आपका हमें अपडेट करने के लिए। सैयद मोहसिन रजा नकवी निगरान वज़ीर आला पंजाब बन गए। अंजुमन ताजरान मुजफ्फरगढ़ के नुमाइंदों का निगरान वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रजा नकवी पर एतमाद का इज़हार। सेक्रेटरी जनूबी पंजाब अंजुमन ताजरान शेख आमिर सलीम ने रोही से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मोहसिन नकवी एक जिम्मेदार शख्सियत है, उम्मीद है कि वो पंजाब की बेहतरी के लिए काम करेंगे। मजीद जानते हैं आमिर डोगर से। पंजाब के मामलात देखने के लिए निगरान वज़ीर आला सैयद मोहसिन नकवी ने चार्ज संभालने के बाद काम जो है वो शुरू कर दिया और इसी सिलसिले में जनूबी पंजाब भर के जो ताजिर हैं उनको एक न्यूट्रल शख्स के तौर पर जो है वो देखते हैं और अंजुमन ताजरान मुजफ्फरगढ़ का भी इस सिलसिले में एक अहम इजलास हुआ। शेख आमिर जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं जनूबी पंजाब भर के ताजरान के, वो इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। क्या कहते हैं जी निगरान वज़ीर आला के बारे में, क्या क्या बातें हुई हैं आपकी मीटिंग में? जी, हमारा मुजफ्फरगढ़ के अंजुमन ताजरान का इजलास हुआ है।
میں سب سے پہلے روہی ٹی وی چینل کے مالک اور ہمارے محسن نقوی صاحب جو نگران وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے ہیں، جو ایک پازیٹیو آدمی ہے اور پنجاب کے نگران وزیر اعلیٰ منتخب ہونے پر میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ جیسے انہوں نے صحافتی برادری کے اندر اپنی خدمات کو اپنے آپ کو منوایا ہے، اسی طرح وہ نگران وزیر اعلیٰ کے طور پر انشاءاللہ پنجاب کے لوگوں کی خدمت کر کے اپنا آپ کو منوائیں گے انشاءاللہ۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ جن کی چیزوں پر ابھی فوری طور پر انہوں نے نوٹس لیا ہے اور ہر چیز کو بخوبی دیکھ رہے ہیں، اور میں امید یہ کرتا ہوں انشاءاللہ وہ نگران وزیر اعلیٰ کے طور پر پنجاب کی بہتر خدمت کر سکیں گے۔ جی بالکل بہتر خدمت کر سکیں گے۔ اس حوالے سے جنوبی پنجاب بھر کے تاجر جو ہیں وہ پورا اعتماد ہیں اور اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں نگران وزیر اعلیٰ سید محسن نقوی پر، اور انجمن تاجران مظفر گڑھ کے عہدیداروں کی جانب سے خاص کر جو سیکٹری ہیں جنوبی پنجاب کے انجمن تاجران کے شیخ عامر، انہوں نے مبارکباد بھی دی ہے اور اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ اور امید بھی لگائی ہے کہ یقیناً وہ جامی ٹوگر بہت شکریہ، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ بہاولپور چیمبر آف کامرس کے صدر ذوالفقار علی مان کا کہنا ہے کہ پنجاب کے نئے نگران سیٹ اپ سے بہت امیدیں وابستہ ہیں۔ بہاولپور کا موٹر وے کنیکشن اور انڈسٹریل اسٹیٹ کی تکمیل کے منصوبوں کے حوالے سے نئے وزیر اعلیٰ سے توقعات ہیں۔ اس حوالے سے جانتے ہیں رضا ملک سے۔ جی رضا ملک بتائیے گا۔ جی بالکل، بہاولپور کی بزنس کمیونٹی اور انڈسٹری کمیونٹی کے مسائل حل کرنے کے لیے چیمبر آف کامرس اور انڈسٹری جو ہے وہ بڑا فعال کردار ادا کر رہا ہے، اور نگران وزیر اعلیٰ سید محسن رضا نقوی سے بھی جو ہیں ان مسائل کے حل کے حوالے سے بہت توقعات ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں چیمبر آف کامرس کے جو پریزیڈنٹ ہیں ذوالفقار علی مان صاحب۔ مان صاحب، کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں نئے سیٹ اپ کو اور کیا توقعات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیا سیٹ اپ جو ہے وہ اچھی ہے، اور الیکشن کے لیے وہ آئے ہیں، ان کو چاہیے وہ فیئر اینڈ فیئر الیکشن کروائیں اپنا وقت کے مطابق، اور ان کے 3 مہینے کے ٹینور میں جو بھی ہے وہ ان کو بزنس کمیونٹی کو سہولیات میسر کرنی چاہیے تاکہ ملک ہمارا کنٹری ترقی کر سکے۔ یہ ہم سے بہت توقعات ہے، اور بہاولپور کے لیے ہمارے خصوصی طور پر، کیونکہ ان کو چاہیے کہ ہمیں موٹر وے کنیکٹیوٹی نہیں ہے یہاں ملی ہوئی، یہ ملنی چاہیے۔ میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہمیں بہاولپور کے لیے چیمبر کے بہاف کے اوپر یہ ہونا چاہیے۔ اور اس میں ایک اور بات بھی ہے، ہمارا انڈسٹری اسٹیٹ تقریباً کافی 12-13 سال سے نگران ہوا ہے، اس کو فنڈ مہیا کر کے انڈسٹری اسٹیٹ کو مکمل کیا جانا چاہیے۔ جی بالکل، جو ہے وہ موٹر وے کی کنیکٹیوٹی اور چیمبر آف کامرس کا جو انڈسٹریل اسٹیٹ ہے اس کی بروقت تکمیل کے حوالے سے جو ہے وہ نگران وزیر اعلیٰ کو اس حوالے سے جو ہے وہ توجہ کے لیے باقاعدہ طور پر نہ صرف چیمبر کی طرف سے ملاقات بھی کی جائے گی اور اس حوالے سے یادداشت بھی پیش کی جائے گی۔ رضا ملک بہت شکریہ اپ ڈیٹ کرنے کے لیے۔ محکمہ بلدیات پنجاب میں تقرر و تبادلوں پر بھرتیوں پر پابندی عائد کر دی گئی۔ الیکشن کمیشن کی ہدایات پر ٹرانسفر پوسٹنگ پر پابندی عائد، نئے ترقیاتی منصوبوں کی فنڈز بھی منظمن کر دیے گئے ہیں۔ نئی تقرریوں کے عمل کو بھی فوری طور پر روک دیا گیا۔ ڈی جی لوکل گورنمنٹ سیکریٹری بورڈ ڈی جی والٹ سٹی کو ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ سیکریٹری لوکل گورنمنٹ کے احکامات پر سیکشن آفیسر جنرل کا مراسلہ جاری۔ بہاولپور میں نئی لوکل گورنمنٹ ایکٹ کی ورکنگ بارے ٹریننگ اجلاس، جنوبی پنجاب کے تمام ایڈمنسٹریٹر آف چیف آفیسر کی شرکت۔ سیکریٹری لوکل گورنمنٹ جنوبی پنجاب امین اویسی کہتے ہیں کہ غیر قانونی پرائیویٹ ہاؤسنگ کا کالونیز ختم کر کے دم لیں گے۔ مزید جانتے ہیں محمود ظہیر سے۔ جی، نئے لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2022 کے حوالے سے ایک اہم اجلاس کا انعقاد کیا گیا ہے بہاولپور میں، جس کی صدارت کی ہے سیکریٹری لوکل گورنمنٹ جنوبی پنجاب امین اویسی صاحب نے۔ بریفنگ دیجیے گا سر اجلاس کے حوالے سے۔ یہ خاص طور پہ ہم جو لوکل گورنمنٹ کے تمام آفیسرز ہیں ان کو نئے لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2022 کے تحت ان کو اس کے چیدہ نکات بتا رہے ہیں۔ اس میں خاص طور پہ کہ کیا نیا انفراسٹرکچر ہوگا اور اس میں کیسے آرگینوگرام بنے گا۔ دوسرا کہ جو مشروم گروتھ ہے ہاؤسنگ سوسائٹیز کی، ان کے حوالے سے ان کو بتا رہے ہیں کہ ان کو کیسے مینج کریں۔ اس کے علاوہ جو ہے ورکس رولز، تاکہ کوالٹی آف ورک بڑھے، جتنے بھی پبلک سیکٹر میں جو لوکل گورنمنٹ کام کر رہی ہے ان کی کوالٹی بہتر سے بہتر ہو سکے۔ تو اس کے لیے فیلڈ فارمیشن کو تیار کر رہے ہیں کہ یہ زیادہ سے زیادہ اچھا ڈیلیور کریں۔ سر یہ جو آپ ابھی بات کی آپ نے ہاؤسنگ سوسائٹیز کے حوالے سے، ہاؤسنگ سوسائٹی کی اجازت بھی ان کا نچلا عملہ دیتا ہے، میل آف آئی ڈی کرتا ہے، ملی بھگت کرتا ہے، بغیر اپروول کے ہاؤسنگ کالونیاں پوری سیل ہو جاتی ہیں۔ اس حوالے سے کیا سخت ایکشن ہے؟
देखें, इसमें क्लियर कट ना लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस में उन्होंने दे दी है कि ये अब अगर कोई पिलफरेज होगी या कोई कमी फीस या कुछ इस तरह का होगा या वो क्राइटेरिया फॉलो नहीं करेंगे तो पर्सनली रिस्पॉन्सिबल होगा सीईओ भी, यानी चीफ ऑफिसर भी, और उसके साथ जो भी अमला उसमें यानी उसका सर्वे करेगा। जी, अभी आप सुन रहे थे बड़ी खबर भावलपुर से। जनूबी पंजाब के जो सेक्रेटरी हैं सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट बता रहे हैं कि जो भी नॉन अप्रूव्ड हाउसिंग सोसाइटीज हैं उनको फौरी तौर पर सील किया जाएगा या उनके खिलाफ कोई एक्शन की लिया जाएगा। और नई जी महमूद जहीर, बहुत शुक्रिया आपका। बात कर लेते हैं तजावजात माफिया के हवाले से। तो उनसा शरीफ में तजावजात माफिया ने पंजे गाड़ लिए। सदर बाजार, कॉलेज रोड, कचहरी चौक पर कब्जा माफिया का राज। दुकानदारों ने दुकानें 3-3 फुट आगे बढ़ा ली। बेजा तजावजात से लोगों को पैदल चलना भी मुहाल हो गया। मजीद तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदे रोही अजमत बुसार। तौसा शरीफ में तजावजात माफिया ने मुकम्मल तौर पर पंजे गाड़ लिए हैं। अगर हम रोड्स की बात करें, मंगरोठा रोड, कॉलेज रोड, न्यू कॉलेज रोड, सदर बाजार, जहां भी देख लें कहीं दुकानदारों ने अपनी दुकानें आगे बढ़ाई हुई हैं, तजावजात की हुई हैं। इस हवाले से कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। क्या कहेंगे आप साहब इस हवाले से? ये जहां हम खड़े हैं ये ज़िला तौसा शरीफ का संगनाम है, कलमा चौक। यहाँ तहसील भर के लोग आते हैं। इसके एक तरफ अदालतें हैं, दूसरी तरफ बाजार हैं, स्कूल हैं, कॉलेज हैं। ये मेन मरकज़ है। यहाँ पे रेहड़ी माफिया का कब्जा है, यहाँ पे वैगन स्टैंड बना हुआ है, यहाँ पे टैक्सी माफिया काबिज है, यहाँ रक्शे वाले काबिज हैं। इसके इर्द गिर्द जितने दुकानदार हैं आप देख लें, ये इन्होंने आगे अपने रेहड़ियाँ किराए पे रखी हुई हैं। ये जो दुकानदार आगे 5-5, 6-6 रेहड़ियाँ रखी हुई हैं, इनसे किराया लेते हैं, वो सब तजावुजात किए हुए हैं। और यहाँ पे बसों के, वैगनों के, कोचों के अड्डे बने हुए हैं और ज़िला बन गया है। अभी तक शहर से बाहर अड्डे मुंतकिल नहीं किए। ये वाहिद हमारा कलमा चौक है जहाँ तहसील भर के लोग यहाँ से आते हैं, गुजरते हैं। शहर भर के लोग यहाँ से आते हैं। आगे मार्केट है, आगे अदालतें हैं, वहाँ जाते हैं। ये सारा दिन यहाँ तजावुजात माफिया की भरमार होती है। कोई अफसर इस पर तवज्जो नहीं करता। हम बार बार रिक्वेस्ट भी करते हैं, अपील भी करते रहे हैं, एहतजाज भी करते रहे हैं कि खुदा के लिए इस कलमे चौक को तजावुज माफिया से आज़ादी दिलाई जाए। अड्डे शहर से बाहर मुंतकिल किए जाएँ। रक्शे वालों को, रेहड़ी वालों को, टैक्सी वालों को, वैगन वालों को एक जगह मुनज़्ज़म करके इन शहरियों की जान छुड़वाई जाए। जी बिल्कुल, तजावुजात माफिया से लोग काफ़ी तंग हैं और मुतालबा कर रहे हैं कि फौरी तौर पर जहाँ पे तजावुजात। बहुत शुक्रिया अजमत बुसार आपका हमें अपडेट करने के लिए। जहांपुर का शेर रोड महकमा हाईवे हुकाम और ठेकेदार की मुबैना नाअहली के बाइस 1 साल बाद भी ना बन सका। ठेकेदार पत्थर डालकर रफू चक्कर हो गए। इलाका मकीन सख्त मुसीबत का शिकार। हादसात मामूल, मुसाफिरों के लिए सफर करना अजाब बन गया। जानते हैं जावेद इकबाल से। बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं जामपुर के शेरू रोड पर। शेरू रोड का काम 1 साल कबल जो है ठेकेदार ने शुरू किया, जो साबिक MNA सरदार जाफर खान लगारी मरहूम की ग्रांट से मंजूर हुआ था। लेकिन 1 साल का अरसा गुजरने के बावजूद ठेकेदार जो है रोड पर रोड़े डाल के जो है पत्थर डाल के वो रफू चक्कर हो चुका है। काफ़ी अरसे से लोग जो है सख्त अजियत का शिकार हैं। यहाँ पर हादसात भी रौनुमा होते हैं, जबकि आने जाने के लिए भी लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मजीद इनको क्या मुश्किलात है हमारे साथ इलाका मको जी, क्या कहेंगे जी अजीज, क्या परेशानी है? मुश्किलात तो वैसे बहुत है, सब परेशानियाँ, लेकिन ये जो रोड वाली ये हमें बहुत परेशानी है। हमारे बच्चे भी स्कूल आने जाने के लिए बड़ी मुश्किल, हम लोग, हमारी गाड़ियाँ तबाह। पहले भी हम लोग गरीब थे, ये रोड की वजह से हमारा ज़्यादा नुकसान हो रहा है। ये ठेकेदार लोग आते हैं, बस 1 महीना बाद पानी लगाया, कभी चूना मूना लगा के भाग जाते हैं। हम लोग इनको बोलते हैं, ये बोलते हैं हुकूमत को बोलो। हुकूमत को हम क्या बोल सकते हैं, हम गरीब लोग। भाई यही रिक्वेस्ट है, मेहरबानी करो, और तो कुछ नहीं दे सकते भाई, ये रोड तो अच्छा बनाओ कुछ। जी आप क्या कहेंगे भाईजान? ऐसी रोड को असदरा से रोड टूट फूट का शिकार है। हमारे स्कूल के बच्चे भी स्कूल जाने से कासर हो रहे हैं, हमारी गाड़ियां तबाह हो रही हैं।
इलाके के लोग अजियत का शिकार। हम हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं इस रोड को फ़ौरन बनाया जाए ताकि हमारे इलाके का ये दरीना बिल्कुल इस वक्त जो है तमाम जो इलाका मकीन है शेरू रोड से लेकर जामपुर से लेकर जखर चौक और जखर चौक से शेरू रोड तक ये एक बड़ा एक तवील जो रोड है, लेकिन ठेकेदार की मुबैना नाअहली के बहस इस रोड को जो है तबाह कर दिया गया है। यहाँ के लोग मकीन जो है वो काफ़ी मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ता है। उनके मरीज जो है वो रास्ते में ही दम तोड़ जाते हैं। इन लोगों ने मुतालबा किया कि मेहरबानी करके खुदारा हमारे हाल पर रहम किया जाए, इस रोड को फौरी तौर पर मुकम्मल किया जाए ताकि ये लोग जो है मुश्किलात से छुटकारा पाएं। जी जावेद इकबाल, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। रंगपुर में राबता सड़कें अरसा दराज से टूट फूट का शिकार। चनाब रोड, मेरान शाह, कोट मुराद, कोडिवाल, कब्रिस्तान रोड की खस्ता हाली के बाइस राहगीरों को सख्त परेशानी का सामना। तफसीलात बता रहे हैं राना परवेज अख्तर। जी राना परवेज अख्तर, बताइएगा। आज जी बिल्कुल रंगपुर की राबता सड़कें अरसा दराज से टूट फूट का शिकार हैं। कब्रिस्तान, चनाब रोड और इसके साथ साथ कोडिवाल रोड, मीरन शाह रोड और कोट मुराद रोड की जो है वो खस्ता हाली के बहस राहगीरों को जो है वो सख्त परेशानी का सामना करना पड़ता है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कब्रिस्तान रोड पर, जहाँ सूरत हाल यह है कि सेवरेज के घर से ये उखाड़ा गया रोड को जो है वो ठेकेदार दोबारा बनाना ही भूल चुका है, जिसकी वजह से मरीजों को जो है वो अस्पताल मुंतकिल करने में भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। बात करने के लिए कुछ शहरी यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। सर बताइएगा कि रंगपुर की राबता सड़कें जो है वो खस्ता हाली का शिकार है, क्या परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्या? जी बिल्कुल जी, रंगपुर की बेशतर राबता सड़कें जो है बड़ी खस्ता हाली का शिकार हैं। सबसे पहले ये जो हो गया अस्पताल रोड या इसको कब्रिस्तान रोड कह लें, इसके अलावा चनाब रोड, कोडिवाल रोड, कोट मुराद रोड, ये सारे रोड जो है खस्ता हाली का शिकार हैं। ये जो कब्रिस्तान रोड है इसी पर 4 स्कूल हैं पड़े, इसके अलावा जानवरों का अस्पताल भी इसी रोड पे है और इंसानों के लिए अस्पताल भी इसी रोड पे है। तो मरीजों को आने जाने के लिए इसमें मसाइल दरपेश होते हैं। इसके अलावा सीवरेज की वजह से ये रोड उखाड़ा गया था, उसके बाद इस रोड पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। आला हुकाम से बात करते हैं तो कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। हमारी यही अपील है कि इन रोड पर तवज्जो दी जाए और इनको बनाने में थोड़ा सा जल्दी की जाए। हाँ जी, आप बताइएगा कि चनाब रोड की भी अब तक हालत हो चुकी है, इसके अलावा कोट मुराद रोड पर भी अस्पताल वाक़या है, इस रोड पर भी अस्पताल है, मरीज नहीं आ जा सकते, क्या परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? जी यहाँ रंगपुर के काफ़ी रोड हैं जो टूट फूट का शिकार हैं। चनाब रोड, कोडिवाल रोड हो गया और मीरन शाह रोड हो गया, और दरिया के पार से लोगों को आने जाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मरीजों को लाने में बहुत मुश्किलात का वो सामना करना पड़ता है। इसी वजह से अल्लाह काम से हमारी अपील है कि इन रोडों को मुकम्मल कराया जाए। जी जी बिल्कुल, शहरियों का यही कहना है कि रोड की अबतर हालत होने की वजह से जो है वो मरीजों को अस्पताल मुंतकिल करने में भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा जो हादसात है उनकी शरह में भी इजाफा हो चुका है, जिसकी वजह से आमदोरफ्ती भी मुतासर है। शहरियों ने आला हुकाम से यही मुतालबा किया है कि रंगपुर के मिलाने वाली जितनी भी ये राब्ता सड़कें इनको जो है वो असर नो। बहुत शुक्रिया राना परवेज अख्तर आपका हमें अपडेट करने के लिए।